Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths chapter 6 triangles. In our previous video we learnt that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Now today we will be doing the first 4 questions from exercise 6.4 based on this result, this theorem. So be ready with your pen and paper and join me as we start the first question from exercise 6.4. Here it is. Let triangle ABC be similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. Now here we have been given two triangles which are similar. दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हैं और उनका एरिया भी दिया है. ट्राइंगल ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल DEF का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है टू द थ्योरम विच इज़ बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. बात समझ में आ रही है ना कि कब हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, ये भी तो समझ में आना चाहिए. तो जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनके एरिया की बात हो रही है तो आपको वो रिजल्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए. Then we have been given EF equal to 15.4 centimeters and we have to find BC. देखिए यहाँ से EF और यहाँ से BC ये corresponding sides हैं इन triangles की. तो अब हम यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे? The ratio of the areas of similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle DEF. ये किसके बराबर होगा? Corresponding sides जो कि हम लेंगे BC और EF इनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल. और अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, EF भी पता है और BC हम निकाल सकेंगे इजीली. नाउ वी राइट द फेयर सॉल्यूशन. वी टेक द नेक्स्ट पेज. वी हैव बीन गिवन triangle ABC is similar to triangle DEF. Area of triangle ABC is 64 centimeter square. Area of triangle DEF is 121 centimeter square and EF is given to be 15.4 centimeter. We have to find BC. We begin the solution. We know, we write the theorem first. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. And now since triangle ABC is similar to triangle DEF, since triangle ABC is similar to triangle DEF, this ratio implies that area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशो है ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के. और अब हम यहाँ पर कौन सी साइड्स चूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में हमें दी है और पूछी है, BC और EF उन्हीं की टर्म्स में. देखिए आप यहाँ से BC और यहाँ से EF. सो हियर वी कैन राइट इट एज BC अपॉन EF होल स्क्वायर. और यहाँ देखिए ट्राइंगल ABC का नाम ऊपर है तो यहाँ से उसी की साइड लिए हमने BC और ट्राइंगल DEF का नाम हमने नीचे लिया है, इसीलिए EF को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिया है. ठीक है, बस अब यहाँ पर वो वैल्यूज़ रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं और आंसर मिल जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इट इज़ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ 121 एंड दिस इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हमें अननोन है, और यहाँ आ जाएगा आपका 15.4. लेट अस राइट इट whole square in place of writing the square of only BC. We take it as BC upon 15.4 whole square. Getting it? अब ये square यहाँ से remove करना है तो उसके लिए हम दोनों तरफ square root लेंगे और square root लेने से RHS में तो square हट जाएगा, BC upon 15.4 हो जाएगा और यहाँ हमें लेना होगा 64 upon 121 का square root, taking square root. You can write it or you may not write.
it's understood also. At this level in class 10th it is very well understood. Now square root of 64, it's 8, and of 121 it's 11, and from here we can take 15.4 in the numerator. This is equal to BC. From here we can write BC equal to 8 upon 11 into, here this can be written as 154 upon 10, cancel it by 11, it will go 14 times, and now this will be 14 into 8, 112 upon 10, this will be equal to 11.2 centimeters. And so now the value of BC, it is equal to 11.2 centimeters. This is the required answer. Getting it? तो यहाँ हमने बस यही रिजल्ट यूज़ किया है. दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो इनका एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के, और जो वैल्यूज़ रखी हैं दी हैं वो रख दी हमने, और इस तरह से हमें रिक्वायर्ड वैल्यू BC की मिल गई. ठीक है, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is twice of CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. यहाँ पर पहले फिगर बनाना होगा. एक ट्रेपेजियम की बात हो रही है तो पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रेपेजियम. We draw it somewhat like this, and then we have to draw the diagonals also. क्योंकि diagonals intersect कर रहे हैं, so we draw the diagonals in this way. Let us now name it ABCD. Now AB is twice of CD. तो AB बड़ी साइड है इसलिए इसको हम बॉटम में लेंगे ABCD. And now this is the point O. Intersection of diagonals is at point O. And now AB is twice of CD and we have to find the ratio of the areas of triangles AOB. ये वाला triangle का area और ट्राइंगल COD, इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो एक्चुअली पहले हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना होगा, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. तो बस वही अप्लाई करना है. वी राइट हियर एवरीथिंग. फर्स्ट व्हाट इज गिवन, राइट इट. Given ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and diagonals intersect each other at point O. This is the figure. Also AB is twice of CD. दुगनी है ये CD की side AB. And we have to find this ratio. We begin the solution. First we prove these two triangles to be similar. क्योंकि similar होंगे तभी तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो पहले इन्हें सिमिलर प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. वी टेक in triangle AOB and triangle COD. देखिए आप AOB और COD यहाँ पर क्या क्या इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो यहाँ से ये एंगल C और ये एंगल यहाँ पर A ये इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. सो वी कैन राइट हियर एंगल OAB this is equal to angle OCD. Since AB is parallel to DC, alternate angles. These are the alternate angles. आप देख सकते हैं ये Z शेप में बन रहे हैं. अगर इस तरह से आप रिलेट करते हैं तो ये दोनों है alternate angles. Also you can see these two angles. These are vertically opposite angles. So we can write angle AOB is equal to angle COD. Vertically opposite angles. अब यहाँ पर आप थर्ड एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे ये एंगल D और यहाँ से ये एंगल B, एंगल CDO और यहाँ से एंगल ABO, ये भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. पर क्योंकि हमें दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए हैं तो AA रूल से अभी ही हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर. तो तीसरा एंगल लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड एंगल हम लिखें. टू एंगल्स आर ऑल्सो सफिशिएंट. सो दिस कैन बी रिटन नाउ. This implies triangle AOB is similar to triangle COD by AA similarity. बात क्लियर हो गई. अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया of triangle COD, this will be equal to
टेक द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कौन सी साइड्स लेनी चाहिए हमें? देखिए ए बी और सी डी के बीच में हमें क्वेश्चन में रिलेशनशिप दी हुई है, तो यहाँ से भी हम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स चूज़ करेंगे वो ए बी और सी डी की टर्म्स में। देखिए यहाँ से ए बी और यहाँ से सी डी, सो वी कैन राइट इट एज ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वेयर। नाउ हियर यू हैव टू गिव द रीज़न। सिंस द रेशियो ऑफ areas of similar triangles is equal to square of ratio of corresponding sides। अगर आपने इसे समझ लिया है तो आपको ये बिना याद किए हुए भी आप इजीली लिख पाएंगे ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट। इसलिए पहले समझना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, और इसीलिए ये इक्वल हो गए। नाउ ए बी इज़ ट्वाइस ऑफ सी डी, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी इज़ ट्वाइस ऑफ सी डी। देखिए ए बी इज़ ट्वाइस ऑफ सी डी दिख रहा है आपको, तो अब इसी को हम यूज़ करेंगे। ए बी की जगह हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी होल स्क्वायर। Give the reason. Since AB is equal to twice of CD, it is given. And now we can cancel the CD and CD, and we will be left with 2 upon 1 whole square. Make some space here. This is 2 upon 1 whole square. May I write it neatly? Yes. This is now equal to 2 upon 1 whole square, and this is equal to 4 upon 1. 2 square is 4, 1 square is 1, and so from here we get area of triangle AOB upon area of triangle COD. This is equal to 4 upon 1, and now we can say that the required ratio is 4:1. This implies the required ratio is 4:1। दोनों ही एरियाज़ का जो रेशियो है वो 4:1 होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या दिया गया था क्वेश्चन में और क्या हमें करना था। हमें क्वेश्चन में ये ट्रेपेजियम दिया गया था और इन दो ट्राइंगल्स, ये COD और AOB, इनका ये जो रेशियो है एरिया का वो फाइंड आउट करना था। तो पहले हमने इन्हें सिमिलर प्रूफ किया, क्योंकि हमें दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही इनके एरिया का रेशियो इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर इन साइड्स का हमें रिलेशनशिप दिया हुआ था, AB इज़ 2 टाइम्स CD, तो AB की जगह 2 CD लिख दिया, CD से CD कैंसिल, एंड नाउ दिस विल बी 2/1 होल स्क्वायर, दिस इज़ 4/1, एंड नाउ दिस इज़ द रेशियो 4:1। I hope it's clear, it's easy. We now take question 3. Question 3. In the figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. देखिए आप यहाँ पर ये BC, इस पर फोकस कीजिए, ये है बेस BC, इसी पर हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये इस तरफ ABC और एक राइट साइड में DBC। If AD intersects BC at O, देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is AO upon DO। यहाँ पर अब हमें इन दो ट्राइंगल्स के एरिया की बात करनी है। ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ऊपर, और फिर ट्राइंगल DBC, इसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना होगा, और फिर इनका रेशियो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है AO अपॉन DO की। तो कैसे करेंगे? पहले हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। वी टेक द नेक्स्ट पेज। हियर वी हैव बीन गिवन ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इस पर फोकस कीजिएगा, सेम बेस BC, एंड AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। वी हैव टू प्रूव दैट दिस रेशियो इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ये ट्राइंगल ABC, इसका एरिया निकालना है। बताइए कैसे निकालें, कैसे निकालें? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई सिमिलैरिटी नहीं दी गई है, पर हमें इनका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, और यहाँ पर भी इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस सेम दिया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन हाइट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हाइट कहाँ से आएगी? हाइट हम खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी विल बी डूइंग कंस्ट्रक्शन। ए से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं BC पर। लेट अस गिव इट द नेम
AM और ऐसे ही D से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं DN. We write the construction first. Construction, draw AM perpendicular to BC from vertex A, and then draw DN perpendicular to BC from vertex D. ठीक है, अब हम जब ये ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास हाइट भी है और बेस भी है, तो इजीली हम एरिया लिख सकते हैं. वी टेक हियर, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रूफ हियर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, this will be equal to half base into height. This is equal to half base is your BC and height is now AM. समझ में आया आपको? Now we find the area of triangle DBC. This is again half base into height. Base तो वही हो गया BC. BC is the base again and now height is this DN. ये height हो गई DN. अब हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है. देखिए, तो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करते हैं. वी टेक द नेक्स्ट पेज. Now area of triangle ABC upon area of triangle DBC. Here we have this one as AM and this one as DN. So this is equal to half into BC into AM, half base into height, और ये हो गया half into BC into DN. अब आप देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सेम बेस है BC, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AM अपॉन DN. ये इक्वल आ गया. लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि ये है इक्वल AO अपॉन DO के और ये आ रहा है AM अपॉन DN के इक्वल. तो हमें अब इसी को AO अपॉन DO के इक्वल प्रूव करना होगा. हमें ये रेशो इक्वल प्रूव करना है AO अपॉन DO के. इसका मतलब हमें ये दोनों रेशोज इक्वल प्रूव करने हैं और ये दोनों रेशोज इक्वल प्रूव करने का मतलब हमें ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढने होंगे जिनकी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. अगर हम उन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाएंगे और तब हमें ये रेशो इक्वल मिल जाएंगे. तो देखते हैं कि ये कौन से ट्रायंगल्स की साइड्स हैं. विजुअलाइज देम इन द फिगर. एवरी टाइम विजुअलाइज दीज साइड्स इन द फिगर. विजुअलाइज करने से हमें इजीली पता चलता है कि कौन से ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं. ऐसे हम याद नहीं कर सकते, बार बार रट नहीं सकते कि इसके बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये लेंगे, ऐसे याद तो नहीं कर सकते. तो समझेंगे कैसे इनको. आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए. AM, दिस इज AM एंड देन DN, दिस इज DN, और उसके बाद AO, ये AO है, और DO, ये है साइड DO. तो अब आप बताइए कौन से दो ट्रायंगल्स लेने चाहिए हमें जिन्हें सिमिलर प्रूव करना है. तो यहाँ हमें लेने चाहिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं की तो ये साइड्स हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ये रेशो अपने आप ही हमें इक्वल मिल जाएंगे. तो अब हम इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं. यस, नाउ वी टेक हियर. नाउ इन ट्रायंगल, दिस वन इज AOM and triangle DON. देखिए क्या क्या बराबर है. यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है. हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया है. एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इक्वल टू 90 डिग्री. बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट. देन एंगल AOM, दिस इज इक्वल टू एंगल DON. ये एंगल यहाँ से और ये एंगल यहाँ से O पर आमने सामने, ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे ही. ये इक्वल हो गए तो दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल हो गए. दिस मीन्स नाउ ट्रायंगल AOM is similar to triangle DON.
DN by AA similarity. Getting it? Now since these two triangles are similar, just first check the notation. हमने सही तो लिखा है, O की जगह O बिल्कुल ठीक है, M की जगह N बिल्कुल ठीक है, सही लिखा है. तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे. और अब हमें कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है? एक तो AM और DN. देखिए यहाँ से AM और यहाँ से DN, और ये इक्वल होगा AO और DO. ये हमें क्वेश्चन में चाहिए AO और DO, तो यहाँ से दिख रहा है AO और DO. गिव द रीजन. करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are proportional or equal ratio, in same ratio. You can write anyways. And now since this is the result, here we can give it result number 1, here we can give it result number 2. So from 1 and 2 we can now easily give the result. From 1 and 2, area of triangle, we have taken ABC first, upon area of triangle DBC, this is equal to AO upon DO. हमने इसके इक्वल तो पहले ही प्रूव कर लिया था, देखिए, और अब ये AO upon DO के इक्वल हो गया, एंड हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखते हैं. हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए गए थे सेम बेस पर, BC पर, और इनके एरिया का रेशो फाइंड आउट करना था. तो हमारे पास बेस तो था पर हाइट नहीं थी, तो हाइट हमने अपने आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की और फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ बेस इनटू हाइट से ये, और फिर हमने इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लिया हाफ बेस इनटू हाइट से, और जब हमने इनका रेशो लिया तो हमें मिल गया ये इक्वल टू AM अपॉन DN. लेकिन ये तो AM अपॉन DN आया है, हमें चाहिए था AO अपॉन DO. तो हमने ऐसे ट्राइंगल सर्च किए जिनकी की ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो हमने ये रेड शेड से इंडिकेट की हुई है, और फिर इनको हमने सिमिलर प्रूव किया. हमें दो सेट ऑफ एंगल्स इक्वल मिल गए, सिमिलर होते ही ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, और फिर ये रेशो हमें मिल गया जो चाहिए था. गेटिंग इट? वी टेक क्वेश्चन 4. हियर वी हैव, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनका एरिया एग्जैक्टली इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं. वी टेक फर्स्ट टू ट्राइंगल्स, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ये स्टेटमेंट. कैसे प्रूव करेंगे? दो ट्राइंगल्स तो चाहिए जो सिमिलर हो, तभी तो प्रूव कर पाएंगे. सो वी टेक हियर, let triangle ABC be similar to triangle DEF and their area be equal, and now we will be proving area of triangle ABC is congruent to triangle DEF. This we will be now proving. We start the proof. Yes, here we have these two figures also, triangle ABC and triangle DEF. Now they have been given similar. Since triangle ABC is similar to triangle DEF, corresponding sides will be proportional or in same ratio. Anything you can write, both are correct. This implies that from here AB upon DE will be equal to BC upon EF. This will be equal to AC upon DF. Also, since triangle ABC is similar to triangle DEF, तो एरिया जो है इन ट्राइंगल्स का, इसका रेशो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. This will be equal to the square of the ratio of the corresponding sides. This will be equal to AB upon DE whole square. This will be further equal to BC upon EF. This should be EF, not EC. Here we have written wrongly. This should be EF. So BC upon EF whole square. This is equal to AC upon DF
होल स्क्वायर, इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब ये रेशो जो है एरियाज़ का, ये कितना होगा? देखिए आप दोनों एरियाज़ इक्वल दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनके एरिया इक्वल हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये जो रेशो है कितना हो जाएगा? 1। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी is equal to area of triangle DEF. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle DEF, ये रेशो आपका हो जाएगा 1। दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल होके 1 हो गया। और यहाँ से इसको रिजल्ट नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको रिजल्ट नंबर 2। 1 और 2 से हम क्या कनेक्ट करते हैं कि ये सभी रेशोज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये रेशो 1 है तो ये सभी रेशोज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। सो वी कैन नाउ राइट हियर दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 AB upon DE whole square equal to BC upon EF whole square equal to CA upon DF whole square, दिस विल बी इक्वल टू 1। दोनों का रेशो यहाँ पर 1 है तो ये सभी रेशोज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। और यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ई स्क्वायर। ये सभी इंडिविजुअली 1 के इक्वल आप रख के देखिए तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? डी ई स्क्वायर के। बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ई एफ स्क्वायर के, और सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। और फर्दर आप स्क्वायर रूट लें तो इससे निकल कर आ रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, और फिर सी ए मिल जाएगा इक्वल टू डी एफ के। तो ये तीनों पेयर्स जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे और तब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। सो दिस इम्प्लाइज दैट नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle DEF by SSS congruence। और यही तो प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे और उनके एरियाज एग्जैक्टली इक्वल थे। तो हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए एक बार फिर से कैसे किया हमने। यहाँ पर हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए थे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे, और साथ ही साथ उनके एरिया जो है उनका रेशो होगा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल होगा। और ये इस तरह से तीनों ही रेशोज़ इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों एरिया इक्वल थे तो एरिया का रेशो 1 हो जाएगा। 1 रखते ही ये तीनों रेशोज़ इक्वल टू 1 हो गए। यहाँ से इंडिविजुअली 1 रखेंगे आप तो ये रिजल्ट्स मिल गए। यहाँ से तीनों साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल मिल गई, और इस तरह से SSS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। Getting it? So these were the first 4 questions from exercise 6.4. I hope all of them have been very well understood by you. That's all for today. Okay then, soon we will meet again in our next class. Bye for now.